हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। आज आप लोगों के सामने एक नीट की एक टेस्ट लेके आया हूं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी नीट एग्ज़ाम पास करने में। तो वो नीट की टेस्ट होगी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट में से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने ऑलरेडी 1 to 5 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं ये वाली हमारी 6th नंबर टेस्ट, और इस टेस्ट में मैं 20 MCQ आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। इन फंजाई stored food material is, so actually stored food material means reserve food material. So in a fungi and animal, most probably reserve food material is glycogen. Like a plant have a starch, so animal and fungi have a glycogen. So A is the correct answer. Question number 2. Cellulose is the major component of cell wall of. So here basically Pythium, Xanthomonas, Pseudomonas, and Pseudomonas are the type of bacteria, and Saccharomyces is a one type of means it's a yeast. So आंसर हमारा जो रह जाता है ऑप्शन वो होता है पाइथियम। तो पाइथियम एक प्रकार का फंजाई है जिनका बेसिकली सेल्यूलोज से बनता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। Which one of the following has haplontic life cycle? Means most probably organisms are showing haplodiplontic life cycle, but here Funaria polytrichum, Eustelago and wheat. So I would say Eustelago will show the haplontic life cycle. Let's see. Yes, it's correct answer. Question number 4. During the formation of a braid, it becomes porous due to the release of a carbon dioxide by the action of. So as we know that bread is a fermented food material which is produced by the Saccharomyces cerevisiae. We commonly called it as a yeast or baker's yeast because yeast जनरली बेकरी में यूज़ होती है। तो जब हम डफ़ यूज़ करते हैं, डफ़ में हम यीस्ट डालते हैं और यीस्ट की जाइमेस एंजाइम के कारण वहाँ पे CO2 के बबल प्रोड्यूस होते हैं। सो यीस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछा भी गया एक दो बार एग्जाम में। Which of the following environmental conditions are essential for optimum growth of a mucor on a piece of bread? मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो म्यूकर नाम के फंजाई को ब्रेड के ऊपर ग्रो करने के लिए मदद करती है। फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है ये। टेम्परेचर ऑफ वीट टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, नहीं 5 डिग्री सेल्सियस तो काफ़ी कूल हो जाएगा, म्यूकर ग्रो नहीं हो पाएगा। सो ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग। थर्ड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउट 5%। अगर 5% ह्यूमिडिटी है तो 95% ड्राइनेस होगी, तो ये भी गलत है, उल्टा होना चाहिए इसका। यस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%, तो 95% ह्यूमिडिटी इज़ करेक्ट। देन शेडी प्लेस मतलब कूल प्लेस। देन ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस, इल्यूमिनेटेड प्लेस जरूर नहीं क्योंकि फंजाई को ग्रो होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं। सो ए इज़ करेक्ट, बी एंड सी मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज़ रॉन्ग, फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, फिफ्थ इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड सिक्स्थ इज़ रॉन्ग। सो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ शुड बी करेक्ट। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. Which pair of the following belongs to Basidiomycetes? So generally fungi have a 4 category like Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes and Deuteromycetes. So Basidiomycete fungi are bird nest fungi and puffballs and claviceps, Phasia and stinkhorns, Morchella and mushrooms. So इसका आंसर हो जाएगा A, birds nest fungi and puffballs. They belongs to Basidiomycetes category. Question number 7. Ergot of rye is caused by species of. So generally this is caused by the species of claviceps. Claviceps ये एक फंजा है और उनसे ये डिसीज होती है। Question 8. Adhesive pad of fungi penetrates the host with the help of. So basically fungi are nitrogen fixer also. There are certain fungi like a mycorrhizae are nitrogen fixer. So when they are in the plant root they are fixing nitrogen, but by what method? By mechanical pressure and enzyme. By hook and sucker, by softening of enzyme or only by mechanical pressure? नहीं, इसका आंसर हो जाता है मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम, दोनों होते हैं। यस, दोनों होते हैं। सी, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9.
the highest number of a species in the world is represented by? एक्चुअली फंजा इसका आंसर सही हो सकता है, लेकिन मोसेस बिलोंग्स टू द ब्रायोफाइट्स, algae are green algae, brown algae and red algae, and lichen are showing association with algae and fungi. So here I will say that answer is A, fungi. Yes, correct. Question number 10. Which of the following is the use lichen in case of pollution? So lichen का pollution से क्या relation? Actually lichens are slow growing organism and they are very sensitive to air pollution. So they are actually indicator of air pollution. Lichens are not related with pollution. A option wrong. B, they act as a bioindicator of pollution. Correct. C पढ़ लेते हम. They treat the polluted water. No. They promote pollution. B is correct answer. Guys, सभी स्टूडेंट को मैं एक फॉर्मूला कहना चाहूँगा, अगर आपको करेक्ट आंसर मिल भी जाते तो भी चारों आंसर ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि मे बी आपका जो आंसर है उससे बेटर आंसर दूसरा भी ऑप्शन में हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 11. विच फंगल डिसीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर? सो ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सीड और फ्लावर से. सो इसका आंसर ए होता है, लूज मट ऑफ वीट. यस. क्वेश्चन नंबर 12. Lichens are a well-known combination of an alga and fungi, where fungus has. So as we know that lichen is a body whose half body is algae and half body is fungi. Algal body is called photobiont or phycobiont and fungal body is called mycobiont. तो हमें यहाँ पे पूछा गया फंगस का क्या रोल है. फंगस a saprophytic relation with alga. नो. सेप्रोफाइटिक मतलब यहाँ पे डिसीज कोज करने वाला, सेकंड इपीफाइटिक रिलेशन विथ अलगा. नो. सेप्रोफाइटिक एक्चुअली रिलेशन मतलब होता है कि वो उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला, बेसिकली कह लो, या तो डेड ऑन डिकेइंग के ऊपर ग्रो होने वाला, उसे हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक. सो ए भी ऑप्शन गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है. थर्ड, अ पैरासाइटिक रिलेशन विथ अलगी. अगर पैरासाइटिक रिलेशन होता तो वो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में प्लेस ही नहीं होता. डी, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अलगी. करेक्ट. फंजाई एंड अलगी बोथ आर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन टू ईच अदर, सो इट्स अ डी. नेक्स्ट. There exists of a close association between the alga and fungus with lichen. The fungus, फिर से पूछा गया fungus क्या है. Provide protection, encourage and absorption of algae. ये तो लग रहा है 90%. Provide food for the algae. No. Fungi are non-photosynthetic. How they will provide food? C, fixes the atmospheric nitrogen for algae. नहीं. Release oxygen for the algae. No. इसका आंसर हो जाता है ए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्सॉर्प्शन फॉर द एल्गी. यस. क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ द डिसीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म? सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पुस्निया ग्रेमिस, लूज स्मट ऑफ व्हीट यूस्टेलोजोनुडा, रूट नोट ऑफ मोलिब्डेनम. सो इसका आंसर ए हो जाता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया. The thalloid body of slime mold myxomycete is known as. So actually slime mold is a one type of fungi. So their fungi body will be called plasmodium. NCERT CBSE में clearly दिया हुआ है ये. Question 16. Which of the following is a slime mold? Rhizopus is not slime mold. Physarum is slime mold. Thiobacillus is not. And Anabina is a one type of blue-green algae. So Physarum is the slime mold. Trichoderma actually बायो कंट्रोल एजेंट की कैटेगरी में आते हैं. ट्राइकोडर्मा हर्जेनम हैज़ प्रूव अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायो रिमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल. नो. रिक्लेमिनेशन ऑफ वेस्टलैंड. नो. जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट. नो. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन. करेक्ट, ये बायो कंट्रोल है. 18 नंबर क्वेश्चन. ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय. एक्चुअली ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पुस्निया, म्यूकर, एस्परजिलस और राइजोपस. सो पुस्निया इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19. प्लांट डिकम्पोजर्स आर. सो एक्चुअली प्लांट डिकम्पोजर्स और मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स आर फंजाई एंड मोनेरा. मतलब बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं डिकम्पोजर ज़्यादातर. क्वेश्चन नंबर 10. यीस्ट सेक्रोमाइसिस इज़ यूजफुल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ. सो जनरली हमें पता है यीस्ट सभी प्रकार के बेवरेजेस मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड,
is a organic acid, tetracycline is a antibiotic, butanol एंड इथेनॉल. तो इसमें हम इथेनॉल सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इथेनॉल इज ड्रिंकेबल अल्कोहल. सो गाइस, दिस इज अवर स्कोर कार्ड. वी हैव गिवन 20 आंसर आउट ऑफ 20 and all answer were correct, no answer were wrong, and we took around 9.43 second, 9 minutes and 43 second to attempt the complete test. Actually I was explaining you all these questions and I was reading and explaining you, therefore I took a much time. Otherwise I could have been completed this test in 5 minutes approx. So but thank you so much for watching this video guys. Have a good day.